পুজোর মুখে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশাতে রেল অবরোধ করতে চলেছে কুর্মীরা। হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি রেলওয়ের। পুজোর মুখে নিজেদের এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত করার দাবি নিয়ে রেল অবরোধ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছে কুর্মীরা। ঝাড়খণ্ড, বাংলা ও ওড়িশার 6টি স্টেশনে রেল অবরোধ করার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছে সম্প্রতি। তাদের দাবি, কুর্মী সম্প্রদায়কে এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত করতে হবে এবং দিতে হবে সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন সুবিধা। আগামী 20 সেপ্টেম্বর থেকে সেই রেল অবরোধ হবে বলে তারা জানিয়েছে 3 রাজ্যের রেলওয়ে আধিকারিকদের। তার আগেই হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে খড়গপুর ডিভিশনের রেলওয়ে আধিকারিকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, রেলপথে নামা তো দূর, সড়কপথে এই আন্দোলনের জন্য আসা লোকজনকে আসতেই দেওয়া হবে না। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খড়গপুরের ডিআরএম অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন এডিআরএম ও আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যায়, 2023-এর এপ্রিল মাসে 1 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে একই দাবিতে রেল অবরোধ করেছিলেন কুর্মী সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত করতে হবে এবং সেই কোটা সম্পর্কিত বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে বলে তারা দাবি করেছিলেন। তাদের আরও দাবি ছিল সেই সময় কোড সহ সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দিতে হবে, কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের 8ম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সমস্ত দাবিতে 1 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন তারা। এর জেরে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন স্টেশন অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোকজন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল ঘাগর ঘেরা। কোনোভাবে বুঝিয়ে সেই সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন রেলওয়ে আধিকারিকরা। পুনরায় সেই একই দাবিতে 20 সেপ্টেম্বর থেকে রেল অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছেন তারা। কুর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রেলওয়েকে, বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 6টি স্থানে তারা অবরোধ করবেন, যার মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুণ্ডা, খেমাশুলি, সরডিহা, মেদিনীপুর স্টেশন, ওড়িশার ভঞ্জপুর ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গালুডি স্টেশন। এই মর্মে লিখিতভাবে তারা খড়গপুর ডিভিশনের রেলওয়ে আধিকারিকদের দপ্তরে দিয়েছে সম্প্রতি। কুর্মীদের সেই সমস্ত আবেদন দেখার পরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রেলওয়ে আধিকারিকরা। এবার সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন রেলওয়ে আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে এডিআরএম মনীষা গোয়েল বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশ রয়েছে, এই ধরনের কোনো অবরোধ করা চলবে না। আমরা 3 রাজ্যের রেলওয়ে আধিকারিক ও নিরাপত্তা আধিকারিকদের নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। আমাদের রাজ্যে ও আমাদের জেলার পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও প্রস্তুতি সেরেছি। কোনোভাবেই এই ধরনের অবরোধ হতে দেওয়া যাবে না। অবরোধ করতে আসার জন্য সড়ক পথেও আটকে দেওয়া হবে আন্দোলনকারীদের। রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাহন কোনোভাবেই আটকানো চলবে না বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। একইভাবে আরপিএফের পক্ষ থেকে আধিকারিক প্রকাশ পান্ডা এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, আমরা সমস্তভাবে প্রস্তুত রয়েছি। আন্দোলনকারীদেরও বার্তা দিলাম আপনাদের মধ্য দিয়ে, বিষয়টা তারা যেন চিন্তা ভাবনা করেন। তবে তা হলেও নিজেদের লক্ষ্যে কুর্মীরা লোকজনকে একত্রিতকরণ ও দেওয়াল লিখন, পোস্টার সাঁটানো শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। ये 4-5 मुद्दे हैं जिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कि 20 तारीख को जो आदिवासी कुर्मी समाज है उसने एक बंद का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने रेल लोको का बोला है। और हमारे 6 स्टेशन हैं, भांजपुर, कलाईकुंडा, खेमासुली, सरडीहा, मेदिनीपुर, गालूडी। यहाँ पे इन्होंने बंद का आह्वान किया है। हमारे को हम लोगों को बाकायदा इन्होंने चिट्ठी दे के ये बताया है। और इस संबंध में अभी एक हाईकोर्ट का आदेश भी आया है, अभी जस्ट शायद 15-20 मिनट ही हुए होंगे, जिसमें हाईकोर्ट ने मना किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हम स्टेट गवर्नमेंट से भी लियाजनिंग कर रहे हैं। तीनों स्टेट्स, आपने देखा होगा कि हमारे 3 स्टेट्स पड़ते हैं, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो तीनों स्टेट से हम लियाजनिंग भी कर रहे हैं कि जिससे अगर कुछ भी अप्रिय घटना ना हो इसमें, तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। और आप लोगों से ये अपील है, क्योंकि आप लोग जनमानस के करीब रहते हैं, कि लोगों को समझाएं कि इसमें ना पड़े, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होने पर, बिकॉज हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है इसमें। तो आपके माध्यम से यही अपील करना चाहिए कि जो भी हमारे जनमानस है उनसे अपील है कि इसमें ना आए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेजर हो जाएगा इसमें, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है।
तो आपसे यही अपील है कि आप अपने जो भी मीडिया है उसके थ्रू आप लोगों से ये अपील करें कि इसमें ना शामिल हों। और इस पर और कुछ सुनना, इस पर और कुछ हमारे सीनियर डीसी साहब बोलेंगे। जैसा मैडम ने बताया 6 स्टेशन जो अभी तक जिन 6 स्टेशनों में हमें मेमोरेंडम मिले हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। ये सडिया स्टेशन है, मेदिनीपुर स्टेशन है, सीमासुली स्टेशन है, कलाईकुंडा, नीमपुरा यार्ड और भांजपुर स्टेशन जो बारीपदा सेक्शन में आता है। इन 6 स्टेशनों में हमें अभी तक आदिवासी कुर्मी समाज की तरफ से मेमोरेंडम मिले हुए हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स भी रखे हैं। रेलवे ने एडिशनल आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सभी स्टेशनों में अलग अलग स्पेशल टीम डिप्लॉय की गई है। हमारे असिस्टेंट कमांडेंट लाइन में रहेंगे और पुलिस के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन है। पुलिस के साथ रोज बात हो रही है, सभी जिलों के एसपी से बात हुई है, एसआरपी से बात हुई है और हम सभी के द्वारा ये डिसीजन एक तरीके से लिया गया है कि एजिटेशन जो अगर होता है तो ये पीसफुल तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से रेल रोको या इसमें जो आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा बताया गया है उसको सफल ना होने दें। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आरपीएफ फिर अपने रेलवे एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज करेगी, जैसा हमने 2023 में भी किया था। इसके पहले जब 2023 के एजुटेशन हुआ था तब उस समय भी आरपीएफ के द्वारा केस दर्ज किया गया था। तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी जितने भी आसपास के विलेजेस वाले हैं या आदिवासी कुर्मी समाज के वो लोग जो जिनकी तरफ से ये मेमोरेंडम दिया गया है और जो इस एजुकेशन में शामिल होंगे उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर का सम्मान करते हुए एजुटेशन में किसी भी तरीके से रेल रोको में शामिल ना हो, क्योंकि रेल रोको एसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज में आता है और यदि एसेंशियल सर्विसेज को किसी भी तरीके से बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, रेलवे पैसेंजर्स की सेफ्टी को नुकसान पहुंचेगा, रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन में यदि किसी तरीके का नुकसान पहुंचेगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ये पूजा फेस्टिवल का भी समय चल रहा है और 21 से ही जो हमारा दुर्गा पूजा का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। उसको देखते हुए ना केवल वेस्ट बंगाल के सभी पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट हो जाता है, बल्कि दूसरे स्टेट से भी इस समय कई सारे पैसेंजर यहाँ पे आते हैं और यदि ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके का रेल रोको किया जाएगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और इसी को देखते हुए आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आदिवासी कुर्मी समाज से कि वो रेल रोको में किसी भी तरीके से शामिल ना हो। सूचित किया गया है डीआरएम सर की तरफ से डीजीपी वेस्ट बंगाल और होम सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल को भी सूचित किया गया इसके बारे में और हम सभी प्रिपेयर्ड हैं। यदि किसी भी तरीके का कोई अनलॉफुल एक्शन अगर होता है तो उसके लिए हम सभी प्रिपेयर्ड हैं। आप लोगों को यदि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने कोई इंडिविजुअल दिए हैं आपको? जी, हमें लेटर्स मिले हैं, हमारे एसएमआर्स को उन्होंने सूचित किया है। एसएमआर्स के लेटर में यही था कि 20 तारीख को रेल रोको प्रस्तावित है उनकी तरफ से सुबह 5 बजे से। सॉरी, मांग क्या है? उनकी मांग वही जो उनकी आदिवासी कुर्मी समाज को जो रिजर्वेशन है उसका कुर्मी समाज को आदिवासी समाज में शामिल किया जाए, ये उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और यही रिक्वेस्ट है कि उसको वो प्रॉपर तरीके से जो फोरम है प्रॉपर फोरम वहाँ पे उसको ज्ञापन देके या उस तरीके से करें, वो अलग है। रेल रोको करके ना करें, प्रॉपर लॉफुल तरीके से उन्हें जो करना है वो करें। इस पर कोई और सवाल इस मुद्दे पर? हाँ, हमने भी उनको जवाब दिया कि आप इस तरीके से ना करें। पिछले बार जब हुआ था आप लोगों ने बहुत सारी कोशिश किया था, समझने की कोशिश किया था, क्योंकि बहुत पीछे आना पड़ा। इस बार क्या शुरू से आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है? हमारी तैयारी तो पूरी है। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं इसमें कि जिसमें उन्होंने मना किया कि इस टाइप का इसका ब्लॉकेड ना करें। पिछली बार ऑलरेडी लोग ट्रेन करके बैठ गए थे, सो गए थे, बैठ गए थे, उसके बाद आप आके पहुंची। इस बार का बैठने देंगे, बैठना पहले ही रोक नहीं, रोड में भी पुलिस के साथ भी बातचीत किया गया है और रोड ब्लॉकेज भी किया जा रहा है
कि ताकि वो रेलवे स्टेशन तक ना आए। साथ ही हम रेलवे जो रेलवे बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं हमारे, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने सारे रास्ते बंद कर दिए तो हमारे पैसेंजर्स भी कैसे आएंगे। हम ट्रेन की वो मूवमेंट भी को तो देखना नहीं रोक सकते हैं ना, ट्रेन में जो पैसेंजर जा रहे हैं उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनपे डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक करके उनको भेजा जा रहा है। और कल थोड़ी सिक्योरिटी चेकिंग 20 तारीख को इसको लेके ज्यादा रहेगी, कल भी हम लोग चेकिंग लगा रहे हैं इस पे। तो अपनी तरफ से हम सारे प्रयास कर रहे हैं और आरपीएफ इस बार पहले से वहाँ पे डिप्लॉय रहेगी, कल से ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस बार हम लोग ने प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करके रखा है, जो लोकल हमारे एसपीज हैं, डीएम्स हैं, तो स्टेशन में भी डिप्लॉयमेंट है, सेक्शन में भी डिप्लॉयमेंट है हमारे स्टाफ का, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी बाकी पुलिस और बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सहायता करते हुए आप लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। आज भी मेरी झारग्राम एसपी से बात हुई थी, और मिदनापुर एसपी और सभी जो एसआरपीज हैं उनसे भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, और सभी के साथ मिलकर ही जो अगर ऐसा कोई भी स्थिति उत्पन्न होता है तो उस समय उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। इस पर और कुछ सवाल इस टॉपिक पर?